खास मुलाकात, खास मुलाकात। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੋਅ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਲਛਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਤੇ ਅਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧ ਦੇਸ਼ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਨੇੜੇ ਅਰਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਅਜਬ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਨ ਦਾਦਾ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਟੇਕਚੰਦ ਮਨਸੁਖਾਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਦਾ ਲਛਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇਵਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਆਨਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਲ ਸਥਾਨ, ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ, ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸੰਜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਬਾਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। जो हमारी सिंध भूमि जहाँ मेरा जन्म हुआ, ये भूमि संतों की भूमि थी। यहाँ साधु संत दरवेश सूफी मत का बड़ा प्रचार था और यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में खूब कमाई की। लेकिन अगर हम देखें तो सिंध भूमि के अंदर जो वहाँ की संस्कृति, पुरातन संस्कृति है, मोहनजोदड़ो, हाँ, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो क्या तो वहाँ अजीब सी, हाँ,
झलक हमको मिलती है सिंध भूमि के अंदर। और यहाँ ही सिंध भूमि जब गुरु नानक साहब जी चौथी यात्रा पर, क्योंकि भाई मर्दाना ने एक सवाल किया था, वो क्या सवाल था? हे सदगुरु बाबा नानक। और भाई मर्दाना जी वो गुरु नानक साहब से उम्र में करीबन 10 साल बड़े थे, लेकिन एक प्रश्न रखा। इन दोनों का प्यार कुछ अजीब था। गुरु नानक साहब का भाई मर्दाने का एक अजीब सा प्यार था। और गुरु नानक साहब जी को एक दिन सहज रूप में कह चुके, हे सतगुरु, मैं आपके साथ जहाँ आपने आज्ञा दी, आदेश दिया, आपके साथ मैं रबाब बजाता रहा। जगन्नाथपुरी के अंदर जहाँ बाबा नानक ने आरती का उच्चारण किया, आप मुझे कुरुक्षेत्र ले गए, आप मुझे त्रिवेणी इलाहाबाद की तरफ ले गए, आप मुझे सोमनाथ की तरफ ले गए, आप मुझे दक्षिण भारत की तरफ वहाँ पर भी ले गए। मैंने कभी भी इनकार नहीं किया। लेकिन हर मुसलमान की ये इच्छा होती है कि मरने से पहले हम हज, हाँ, मक्का और मदीना जो एक पावन पवित्र तीर्थ स्थान है, हर मुसलमान की चाह है कि एक बार मैं वहाँ हज से हो आऊँ। मेरी भी इच्छा है, स्वाभाविक है। और गुरु नानक साहिब जी ने उसी समय भाई मर्दाने को दिलासा दिया, हे मेरे प्यारे, वहाँ पर भी तेरे को ले चलूँगा। और भाई मर्दाने को जब ये प्रोग्राम सारा बनाया, चौथी उदासी के अंदर बाबा नानक ने जो भी यात्रा, टोटल उन्होंने 22 साल कुछ महीने, इतिहास के अंदर मेरी नज़र में बाबा नानक ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है अराउंड द ग्लोब, इन द वर्ल्ड, जिन्होंने सबसे अधिक यात्रा की है, उदासियाँ की है। अगर हम गुरु नानक की उदासियाँ देखें, यात्रा देखें, तो चौथी यात्रा के अंदर बाबा नानक ने भाई मर्दाने को कहा, पहले हम सिंध में चलेंगे, हाँ। और जब से गुरु नानक साहिब जी के चरण स्पर्श सिंध भूमि पे पड़े, तो हमारी सिंध भूमि खुशहाल हो गई, गदगद हो गई। मैं तो कहूँगा गुरु नानक की जो फिलॉसफी, टीचिंग्स, मैसेज जो बाबा नानक ने दिया वहाँ पर, तो हमारी सिंधी समाज के जितने भी बुजुर्ग थे उन दिनों में, वे बाबा नानक से जुड़ गए। क्योंकि गुरु नानक साहिब जी ने, उनका जो मैसेज है, द मैसेज इज ऑफ इक्वालिटी, बराबरी का संदेश है, ना को बैरी नहीं बिगाना। उनका मैसेज है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक अकाल पुरख का संदेश दिया, जो प्यार का संदेश है, हार्मनी का संदेश है, शांति का संदेश है, और इक्वालिटी का, समता वाला वो उपदेश दिया। हम सिंधी समाज, हमारे बुजुर्ग सब जुड़ गए। जब जुड़ गए तो फिर आज दिन तक वो कंटिन्यूटी है कि हम सिंधी समाज गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरु ग्रंथ साहिब की भी ये ब्यूटी, खूबी, जब वहाँ के मुगल और सिंधी समाज को तंग कर रहे थे, अत्याचार हो रहा था, खूब अत्याचार हुआ सिंध के अंदर, तब उन्होंने रुख कहाँ किया? जो शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह लाहौर के अंदर उनकी दरबार लगती थी, और 5 सिंधी प्यारे, उनमें एक लालवानी परिवार, आज भी लंदन आप जाएंगे तो डॉक्टर करतार सिंह लालवानी, हाँ, उनकी मल्टीविटामिन की फैक्ट्रियां हैं नाइजीरिया, लेगोस में और बम्बई के अंदर, थाना के अंदर। ये गुरमुख प्यारे हैं कमाल के। तो इनके बुजुर्ग भी उन 5 प्यारों में जो सिंध से गए लाहौर की तरफ, तो जाके उन्होंने सारी वेदना बताई, लेकिन साथ साथ में उन्होंने गुरु नानक का जस गाया, गुरु नानक की महिमा गाई।
महाराजा रंजीत सिंह लिखते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में कि सिंधी समाज, ये 5 प्यारे जो सिंध से चलकर आए थे अपनी वेदना को लेकर, लेकिन उन्होंने कुछ भी मेरे से मांगा नहीं। दुनियावी पदार्थ या धन दौलत, प्रायः हमने देखा है हम किसी भी उच्च महान व्यक्ति के पास जाते हैं, मन में इच्छा होती है हम इनसे कुछ मांगे, दुनिया मांगे। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है उन सिंधियों ने कुछ भी बात नहीं की दुनिया की, केवल गुरु नानक की उस्तत की। गुरु नानक की उस्तत की। महाराजा रंजीत सिंह के द्वार पर जो भी बंदा जाता था, अगर हम इतिहास पढ़कर देखें तो महाराजा रंजीत सिंह कभी भी खाली नहीं भेजते थे, कुछ ना कुछ देते थे, तोहफा देते थे। महाराजा रंजीत सिंह के मन में विचार उठ रहा है कि ये सिंधी समाज जब उठेगा तो मैं इनको क्या दूं। इन्होंने संसार तो मांगा ही नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उस समय हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहब, उस समय हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहब, उनको सप्रेम श्रद्धा मर्यादा के साथ भेंट की। ना केवल भेंट की, उन्होंने हाथी दिए, नगारे दिए, बहुत कुछ छैने ढोलकियां आदि दी। भाई कीर्तन करते हुए तुम गुरु ग्रंथ साहब को सिंध में ले जाओ। और श्रद्धा भावना मर्यादा के साथ पहली बार गुरु ग्रंथ साहब हमारी सिंध भूमि पर जब पधारे, वहाँ हैदराबाद सिंध में अकाल बुंगा वहाँ बना और वहाँ पे उनका प्रकाश हुआ। तब से लेकर अब अगर हम देखें तो महाराजा रंजीत सिंह का समय कितना भारी समय था, कितने साल उन्होंने राज किया। यहाँ लिखा हुआ 1780 से 1839 तक महाराजा रंजीत सिंह, हाँ, वहाँ खूब ये सिंधी समाज गुरु ग्रंथ साहिब की। फिर उसकी स्वरूप छपने लगे। आज अगर सिंध के अंदर जहाँ मैं जाता रहता हूँ, कितनी वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की आज भी कितनी दरबारें हैं। उन दरबारों का नाम है श्री गुरु नानक दरबार, उन दरबारों को नाम है गुरु मंदिर, उन दरबारों को का नाम है सचखंड। हाँ, ऐसे ऐसे नाम रखे और खूब वहाँ कीर्तन सत्संग। आज दिन तक अगर आप जाकर देखेंगे वहाँ कितना प्रवाह गुरु ग्रंथ साहिब का है। हाँ, और सबको गुरमुखी आती है। हैरानगी की ये बात है कि हर सिंधी परिवार को वहाँ गुरमुखी सिखाते हैं ताकि वो गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ लगे। बहुत अच्छा। ये खूबी है, बहुत खूब। ये वड्याई है। मेरे पिता माता ने, हम 8 भाई बहन, 8 को ही पहले गुरमुखी दी। भाई गुरमुखी में पाठ पढ़ो अगर शुद्ध पाठ पढ़ना है, बहुत अच्छा, मात्राओं के साथ। आज दिन तक गुरमुखी के अंदर हम पाठ पढ़ते हैं। उसकी रिजल्ट ये है, ये निकली, क्योंकि मात्राएं है ना। मेरे पिता चाहते थे भाई गुरबानी का गायन करो, पठन करो, हाँ, श्रवण भी करो, लेकिन साथ साथ विचार भी करो। लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। दादा जी, नाम बाणी ਦੀ ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਉਹ बहुत ही लासानी है, अपने आप विच एक मिसाल है। और ये सब कुछ अकाल पुरख की बख्शिश सदका तुहाडे परिवार नूं मिलिया। दोस्तों, गल्लां चल रहीआं ने गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे असीसां दियां, उन्हां बख्शिशां दियां, नाम बाणी दियां। पर वेला हो चला एक छोटी जी ब्रेक दा। असीं लैंदे एक छोटी जी ब्रेक, जाना किते ना, असीं हुणे गए ते हुणे आए। प्रोग्राम चल रहा है खास मुलाकात, मुड़ हाज़र होंदे आं एक छोटी जी ब्रेक तो बाद। खास मुलाकात। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਸਿੰਗਰਸ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਓਨਲੀ ਔਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਲਛਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। मुझे याद है कि मैं जब पिता के साथ यात्राएं करता था हर प्रदेश के अंदर, और जहाँ पर भी जाओ, चाहे गुजरात है, मराठी है, या बंगाल है, बिहार है, यूपी है, जहाँ जहाँ मैं जाता था तो मैं देखता था कि गुरु ग्रंथ साहिब का टीका वो है ही नहीं। मन में विचार उठा कि इतना हमको खजाना मिला हुआ है, अगर हम यही खजाना उनकी भाषा में, मातृभाषा, तो मन में विचार उठा मैं गुजराती के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को प्रिंट करूं। मैंने करवा लिया, गुरु की कृपा है। मैंने मराठी के अंदर भी करवाया, हाँ। उसके बाद फिर मैंने बंगाली के अंदर करवाया, हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब का लाभ तब उठाएंगे जब उनकी भाषा में हम उनको देंगे। तो इसलिए कि ये बंधन मत डालो, तो भाई गुरु ग्रंथ साहिब की भाषा केवल गुरमुखी के अंदर ही ये बंधन नहीं डालने चाहिए। हर भाषा के अंदर लाभ दो। ये भोजन है जे को खावे जे को भुंजे तिसका होए उधारो। ये दवाई है, ये दवाई हर बंदा आज रोगी है, जो जो दिस है सो सो रोगी। कृपा करके मेरी बेनती है, मैंने तो खूब ग्रंथ प्रिंट किए, हाँ। और मैं, अगर आप इजाज़त दो तो मैं ये ग्रंथ आपको कुछ दिखा भी सकता हूँ। हाँ जी। न केवल गुरु ग्रंथ साहिब का टीका मैंने किया, मैंने श्री दसम ग्रंथ का भी टीका हिंदी में, हाँ, वो भी प्रकाशित अनुवाद सहित। अब ये जो ग्रंथ है वो मराठी के अंदर है, गुरु ग्रंथ साहिब का मराठी के अंदर, और एक तरफ मैंने बानी, शुद्ध बानी मात्राओं के साथ, और फिर सामने मराठी में टीका है। बहुत अच्छा। हाँ, टीका है। ऐसे अलग अलग ग्रंथ बैठ के मैंने लिखे हैं, और गुरु की अपार कृपा है। पंजाबी के अंदर भी टीका मैंने किया, क्योंकि मैंने कहा मैं आज दिन तक पंजाबी में चिट्ठियाँ लिखता हूँ। मुझे किसको भी कुछ चिट्ठी का जवाब देना है, मैं पंजाबी में लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने हम सब बच्चों को गुरुमुखी जरूर सिखाई है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ लगाना है, किसी को भी, खास करके अपने बच्चों को लड़ में लगाना है, उनको गुरुमुखी सिखाओ कैसे भी। तो ये मैंने फिर पंजाबी के अंदर आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाम संदेश, ये 5वीं सेंची है, इसमें भी वही चीज़ है। बानी ओरिजिनल एक तरफ, सामने टीका है, सामने टीका है। इस प्रकार गुजराती के अंदर, मराठी के अंदर, बंगाली के अंदर, हर भाषा के अंदर गुरु ने कृपा की। ऐसी संचियाँ खूब मैंने प्रकाशित की, और सारी दुनिया के अंदर मुझे याद है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब की ये संचियाँ ले जाकर, मैं इसके पैसे नहीं लेता हूँ, मैं ये बेचता नहीं हूँ, मेरा ये पेशा नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी एक तुच्छ सेवा है। और वो भी सेवा निरिच्छुक होके मैं सेवा करता हूँ, निरिच्छुक। दादा जी, तुसी सिंधी भाषा दे विच भी दा टीका सिंधी भाषा में भी किया है। देवनागरी सिंधी हमारे यहाँ 4 ये जो
भाषाएं हैं, ये तो मैंने उर्दू के अंदर सिंध पाकिस्तान के लिए उर्दू के अंदर ये सुखमनी साहब है, इसका टीका किया है और वो ही रखा है ओरिजिनल बानी। मैंने इसमें पंजाबी में भी दिया, उर्दू में भी, ताकि हम शुद्ध बानी पढ़े। साथ में जो ओरिजिनल ग्रंथ जिस भाषा में होता है उसके अंदर और फिर सामने टीका दिया है। तो ऐसे ही सिंधी भाषा में भी बहुत ही ग्रंथ है, कहाँ कितने मैं लेकर जाऊँ, लेकिन जिनको चाहिए या सोलन में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से आप कलेक्ट करो, दिल्ली से कलेक्ट करो, जहाँ पर भी चाहो। लेकिन मैं गुरबानी के गुटके बाय कोरियर बाय पोस्ट नहीं बेचता हूँ। मैं कहता हूँ अपने आप लेने आ जाओ, सत्कार के साथ ले जाओ और ना केवल इसको अलमारी की शोभा बनाना, आप इसका अभ्यास करोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। मैं तो सबको बेनती करता हूँ, बानी की सेवा, बानी का प्रचार चाहते हो तो अपने कुटुंब परिवार को साथ रखो, एजुकेशन भी दो, हर प्रकार से उनको जीवन दो, लेकिन साथ में गुरु की बानी से भी हम जोड़ेंगे तो फिर आप देखेंगे परिवार क्या बिल्कुल नज़ारा ही बदल जाएगा। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਲਛਮਣ ਚੇਲਾਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ अपना जीवन बेहतर कर सकन। संदेश तो बंदा क्या दे सकता है, संदेश तो गुरु ग्रंथ साहब का ही है। हम जो लोग अपने आप को प्रचारक, वक्ता या ज्ञानी या ब्राह्मण या पंडित कहते हैं, हमारा जीवन वो एक संदेश होना चाहिए। हमारे कर्म व्यवहार जीवन के अंदर वो संदेश होना चाहिए। जीवन का प्रभाव पड़ता है तो जीवन हमारा इतना तो बढ़िया होना चाहिए एज पर बानी, और वो ही अपने आप में संदेश है। संतोष की मैं बात करता रहे तो भाई जीवन में संतोष रखो। और भी मैं सिंधी समाज में खास करके, और आपको भी मैं बेनती चढ़ती कला के द्वारा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि हर परिवार के अंदर चढ़ती कला हो। मैंने अभी मैगजीन में देखी, वहाँ लिखा है चढ़ती कला पढ़ो, चढ़ती कला में रहो सदा। चढ़ती कला में हम तभी सदा रहेंगे जब हम गुरु की बानी से जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे कैसे? जब सुने भी। जपजी साहब के अंदर 4 पौड़ियाँ हैं सुनिए की और 4 पौड़ियाँ हैं मनिए की। मानना पड़ेगा, जो सुने उसको मानना पड़ेगा। और 16वीं पौड़ी जपजी की है, पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। तो पंच का खिताब तब मिलेगा जब हम गुरु के शब्द को सुने भी और माने भी, कमाई भी करें। हाँ, जब जीवन के अंदर कमाई करेंगे शब्द की, न केवल गाना है, न केवल बजाना है, न केवल पाठ करना है, मैं तो साफ सुथरी बात करता हूँ भाई, कमाई अधिक होनी चाहिए। बानी का अभ्यास, बानी की गहराई जब हमें पता चलेगी तब हम शांत हो जाएंगे, एकाग्रता जीवन में आ जाएगी, संतोष आ जाएगा। एवरीथिंग वॉट एवर इज पॉजिटिव वो मेरे जीवन में आ जाएगा। ये जो द्वैत की भावना है, जो वितकरे की भावना है, जो हम कहते हैं कि ये मेरा ये तेरा, हमने वो मज़हब के अंदर दीवारें खड़ी की हुई है, ये सब दीवारें टूट जाएगी जब हम बानी का अभ्यास करेंगे। बानी के अंदर वो ताकत है, बानी को समझना है। ये व्हाट इज द मैसेज ऑफ गुरबानी। हाँ, इस फिलॉसफी टीचिंग्स को हमने समझना। मैं फिर भी आपका बहन जी का,
हाँ, और हमारे सरदार जगजीत सिंह जी, उनका तो नाम संसार भर के अंदर मैं देखता रहता हूँ, मैं मिलता रहता हूँ। कितनी न सेवा ये चढ़ती कला, हाँ, चाहे वो टाइम टीवी है चाहे पेपर है, मैं देखता रहता हूँ। खूब सेवा करें और इनके बच्चे फलते फूलते रहते हैं। बड़ी बात है कि गुरु घर से जुड़े हुए हैं। मेन बात जो है ना, आज मेरे से ये इंटरव्यू के अंदर कुछ सवाल जवाब कर रही है, पूछ रही है, लेकिन मेरे भीतर पता है मुझे कितनी खुशी है कि पिता की लायक ये बेटी है। हाँ, लेकिन कौन करता है, किसको परवाह नहीं है। वाणी का कुछ कल कीर्तन भी मैंने सुना, मुझे इतनी मस्ती मौज आ रही थी, क्या तो आनंद से आंखें बंद करके, हाँ, कीर्तन की धुन लगी हुई है। गुरु कृपा करे। मैं तो जहाँ जाता हूँ कृपा ही कृपा, तेरे बहाने सरबत का भला। गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत का भला। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਰਹਿ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਵਹਿ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਲਛਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਣਮੁੱਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। चढ़दी कला टाइम टीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾਦਾ ਲਛਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ।